everyone. सर आपको आवाज आ रही है मेरी? जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। वालेकुम अस्सलाम। Great, thank you. So we will be inshallah starting the very wonderful session on the data specifically on labor force survey and Pakistan social living standard measurement survey, which is also known as household income and integrated economic survey. Sometimes it is also called household income and expenditure survey. With us today, we have very well known, excellent, renowned speakers and our teacher also, Professor Dr. Naimuz Zafar. Professor, I call him because he remained in academics as well. And currently, he is chief statistician at the Pakistan Bureau of Statistics. Dr. Naimuz Zafar is a distinguished economist and statistics person currently serving as chief of Pakistan Bureau of Statistics with 2 decades of experience, more than 2 decades of experience with government, academia, and policy making. He is a person to talk to on the topic we are talking today. Dr. Zafar made significant contribution, for example, on well-being and development by introducing and also working on poverty measurement, economic planning, and policy research. And one of the hallmarks of his stay at Pakistan Bureau of Statistics is basically conducting digital population census, and also I think the latest highs is also digitally done. He has a PhD in economics and also worked with Planning Commission, UNDP, and Government of Sindh. With all that, he also has earned Sitara Imtiaz, which is one of the prestigious national medal that he have with him, and it is the highest civilian award. Sir, I think we start with 3 to 4 minutes of your brief about the topic and the data that we are talking about, and then we start with the session, inshallah. Over to you. Thank you very much. I can see from the list of participants that there are not many people who cannot make sense from Urdu communication. So, if it's fine, then I can switch to Urdu. If we have people who are from overseas and cannot comprehend, then I can continue in English. You Faisal, can you you can go agree? ahead with Urdu, sir. No worries. Okay, so it's convenient, why not? So, Yes. I'll very briefly talk about the two surveys, household integrated economic or income expenditure, as Faisal said, and the labor force surveys. Uh, 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 we recently announced the household integrated economic survey. So, it is also sometime packed under PSLM, Pakistan Social and Living Standards Measurement. So PSLM has two versions. One is representative at the district level, which is more focused towards social indicators. It was meant to track Pakistan's progress on Millennium Development Goals. 2000 के बिगिनिंग में शुरू हुआ था और 2015 के बाद द सेम इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू ट्रैक पाकिस्तान प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इसी पीएसएलएम का एक ये पीएसएलएम डिस्ट्रिक्ट लेवल रिप्रेजेंटेटिव है। इसका सैंपल साइज 2 लाख घरानों से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और उसी का जो प्रोविंशियल वर्जन है उसको हम हाइस कहते हैं। ये तकरीबन 40,000 के लगभग घरानों पर मुश्तमिल सर्वे होता है और इसमें सोशल इंडिकेटर्स भी पूछे जाते हैं और इसका फोकस होता है कंजम्पशन पे। इनकम और कंजम्पशन इससे एस्टिमेट की जाती है। तो अपार्ट फ्रॉम ट्रैकिंग द स्टेटस ऑफ हाउस होल्ड्स एंड इंडिविजुअल टू सोशल एक्सेस, हेल्थ, एजुकेशन, आईसीटी, पॉपुलेशन प्लानिंग एटसेट्रा, इसका बड़ा मकसद ये है कि लोगों की इनकम और कंजम्पशन के पैटर्न क्या हैं उसको देखें। और ये इंस्ट्रूमेंट जो पावर्टी, हेड काउंट पावर्टी जो निकलती है, मनी मेट्रिक पावर्टी, पाकिस्तान 2015 से कॉस्ट ऑफ बेसिक नीड पर बेस्ड पावर्टी निकाल रहा है, वो इसी सर्वे से निकलती है। दूसरा ये जो हाइस इस दफ़ा हमने डिजिटली किया है। तो वैसे तो शायद
लोग इसको इतना कंसर्न ना हो, सो व्हाट कहेंगे, सो व्हाट इफ दिस इज डन डिजिटली। लेकिन इसमें ये देखना ज़रूरी है कि जो इसका कंजम्पशन मॉड्यूल है, मॉड्यूल 6 हाइस का है वो, उसमें तकरीबन 400 मुख्तलिफ तरह की कंजम्पशन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यू कैन इमेजिन कि 400 चीज़ों पे, जिसमें मसाले से लेके आपके ट्रैवलिंग तक हर तरह की कंजम्पशन आ रही हो, एंड सेम इज़ ट्रू फॉर इनकम, जो जो आपकी इनकम स्ट्रीम्स है सारी पूछी जा रही हो, तो आसान नहीं होता। उसमें तकरीबन 400 के करीब कैटेगरीज होती हैं मुख्तलिफ। तो उसको डिजिटली कलेक्ट करना, इट्स क्वाइट अ टास्क। दूसरी जो बड़ी अहम चीज़ भी है, आप लोगों को शायद इंटरेस्ट करे ये, पाकिस्तान अभी जो नेशनल इनकम एस्टिमेट कर रहा है वो सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट 2008 के तहत कर रहा है। 2025 में जो यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स डिवीजन है, जो नेशनल इनकम कंपाइलेशन कैसे की जाए उस पर स्टैंडर्ड्स वज़ा करती है, सारे जो मुल्क हैं ग्लोबल कम्युनिटी के उसको फॉलो करते हैं। तो 2025 में कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू मूव फ्रॉम SNA 2008 टू 2025। उसमें 2008 और 2025 की SNA में, अपार्ट फ्रॉम अदर डिफरेंसेस, जो दो तीन क्रूशल डिफरेंसेस हैं वो ये हैं कि ये ममालिक इसको एस्टिमेट करें कि उनकी कंजम्पशन जो गिग तरीक़ों से, जिसमें जो गिग इकोनॉमी के ज़रिए वो अपनी कंजम्पशन को मैनिफेस्ट करते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो किस किस तरह हो रही है इकोनॉमी में, ये डॉक्यूमेंट करें। इसी तरह गिग से लेबर सप्लाई किन किन सेक्टर में कितनी हो रही है उसको डॉक्यूमेंट करें। और फाइनली जो ऑर्गेनाइजेशन के फर्म्स हैं, वो सोर्सिंग इनपुट और आउटपुट, जो उनकी सप्लायर्स हैं, जो लिंकेजेस हैं, उसमें सोर्सिंग कितनी वो गिग से करती हैं उसको डॉक्यूमेंट करें। तो अगर आप ये तीन चीज़ें अगर आप डॉक्यूमेंट कर पाते हैं तो आप काफ़ी हद तक SNA 2025 को फॉलो करने के करीब आ जाते हैं। तो द यूनिक थिंग या आई मीन गुड थिंग अबाउट दिस हाइस इज कि इसमें गिग कंजम्पशन को मेजर किया गया है। तो आई एम नॉट टेकिंग यू थ्रू द numbers, otherwise the whole session will be consumed by the presentations, although I have it, but you can always read it from the website of PBS. Now I'll talk very briefly about labor force supply. लेबर फोर्स सप्लाई आपकी जो लेबर फोर्स है, पार्टिसिपेशन रेट है, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है, फिर एम्प्लॉयमेंट आपकी इकोनॉमी के किन सेक्टर्स में है, किन इंडस्ट्रीज में है, किन ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज में है, वेजेस कितनी हैं उसमें, फिर उनमें फॉर्मल और इनफॉर्मल का एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस क्या है। फिर इसमें फिर हमने जस्ट आई सेट के SNA 2025 की तरफ ग्रेजुएशन भी ऑब्जेक्टिव था। इन दोनों सर्वे को जब हमने शुरू किया, तकरीबन 1.5 साल पहले प्लान किया था, तो इसमें जस्ट लाइक वी इंक्लूडेड अ मॉड्यूल टू एस्टिमेट द गिग कंजम्पशन, तो इसी तरह इसमें हमने मॉड्यूल रखा गिग लेबर सप्लाई का, वो रखा। और फिर एक और चीज़ के प्रीवियसली, मतलब शायद 2 या 3 राउंड्स पहले, लेबर फोर्स सर्वे में हम जो मॉड्यूल 10 था इसका आखिरी, उसमें हम ये देखते थे कि जो अनपेड वर्क कितना है। तो हमारे यहाँ जो हमारी हाउस होल्ड सेटिंग्स हैं उसमें ख़वातीन अक्सर अनपेड वर्क कर रही होती हैं। खैर, ख़वातीन रूरल इकोनॉमी में कहीं ज़्यादा काम करती हैं अर्बन इकोनॉमीज़ के मुकाबले में। तो वो अनपेड वर्क अक्सर कैप्चर नहीं होता। आइडियली तो जो बेहतर तरीका है इसका करने का ये है कि आप, जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, लोगों को वो डायरीज दे देता है, उसमें वो टाइम यूज सर्वे पूरा अपना लिखते हैं कि उन्होंने सुबह 5 बजे से लेके रात को जब तक वो सोते हैं क्या क्या किया। तो उसमें पेड वर्क भी आ जाएगा, अनपेड वर्क भी आ जाएगा। तो ये हाउस होल्ड के टाइम की अपॉर्चुनिमेंट पता चलती है। शॉर्ट ऑफ दैट, जो इम्प्रोवाइजेशन क्लोजेस्ट हो सकती थी वो ये थी कि हम जो 14 बड़े हाउस होल्ड चोर्स हैं उसमें हम देखें कि हाउस होल्ड अपने टाइम के अपॉर्चुनिमेंट कैसे कर रहे हैं, और वहाँ से फिर हम जो अनपेड वर्क है या टाइम यूज सर्वे, ये क्लोजेस्ट चीज़ लाने की कोशिश करें, तो वो भी इसका पार्ट है। तो आई मीन दिस इज जस्ट अ वेरी ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द टू सर्वेज वी डिड रिसेंटली। और अगर थोड़ा ब्रॉडली देखें तो ये दो सर्वेज उन 9 नेशनल लेवल सर्वेज का पार्ट हैं जो कि हम GDP की रीबेसिंग के लिए कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स,
ये दो सर्वेज भी उसमें सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं रीबेसिंग में। और अभी पाकिस्तान की जीडीपी 15-16 की बेस पे है, और इंशाल्लाह 2027 में पाकिस्तान की जीडीपी 25-26 में मूव हो जाएगी। तो ये तक 9 नेशनल सर्वेज हैं और तकरीबन 35 छोटे सर्वेज और स्टडीज़ हैं जो ये मुकम्मल होंगी, जिस तो आपकी जीडीपी को रिबेस करने के लिए जो वाइटल इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल होगी, और इंशाल्लाह रिबेस कर देंगे। लेट मी फाइनली शेयर विद यू कि आधे वो नेशनल सर्वेज और तकरीबन आधे स्टडीज़ और छोटे सर्वेज हो चुके हैं। तो वी आर मूविंग वेरी क्लोजली with the targets we set for ourselves. So, Faisal, I stop here and then we can take the questions from here, I think. बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको आवाज़ आ रही है मेरी सर? जी बिल्कुल, I can hear you. Wonderful. So I will again ask very simple thing कि जो आपका सेंसस था वो भी डिजिटल था, एंड देन द करंट हाइस इज आल्सो डिजिटल. So the simplest question that one can easily ask is shifting from manual data collection to digital data collection. What are the challenges that were faced, and how authenticity of the data were ensured? If you can comment on that, these two things, please. सबसे पहला चैलेंज तो इंटरनल था। 7-8 साल पहले जब ये एफर्ट शुरू हुई थी, पुराने लोगों का ख्याल था कि वो डेटा महफूज नहीं होगा, क्योंकि उनको नज़र नहीं आ रहा, तो वो कहीं होगा भी नहीं और रिट्रीवेबल नहीं होगा। तो उन्होंने बड़ा रेजिस्ट किया। तो अल्लाह का शुक्र है, उस फेज से तो बहुत पहले गुजर गए। उसके बाद ये था कि जो सर्वेस जब आपने टैबलेट्स में डाले, तो कागज़ में जब आपके पास कोई सवालनामा होता है, उसके लॉजिकल पैटर्न्स होते हैं, स्किप पैटर्न्स होते हैं, सीक्वेंस होते हैं कि अगर इसका जवाब ये हो तो दूसरा सवाल करें, और ये हो नहीं हो तो आप 8वां सवाल करें, इस तरह की चीज़ें। तो आई मीन टुक सम टाइम पीपल टू गेट कस्टमाइज टू दैट सेटिंग, बट वो आसानी से हो गया। इसमें जो बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा हुआ है कि जब आप ऑपरेशन कर रहे होते हैं, चाहे सर्वे का हो, सेंसस का हो, तो आपको ऑपरेशंस को ट्रैक कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह, क्योंकि डिवाइस में एक तो इन्यूमरेटर का वो पूरा पाथ आता है कि एक घर से उसने डेटा लिया, फिर दूसरे घर में गया तो वो उसी जनाब पड़ोस में चला गया, या 2-3 गलियों से गया, तो आई मीन यू कैन ट्रैक उसके मूवमेंट का पैटर्न। दूसरा, जब उसने बेल दी और द पर्सन ओपन द डोर, अलाइटेड एंड स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग, एंड देन फर्स्ट द पर्सन बिल्ड द रेपो इन्यूमरेटर सर बिफोर आपकी आवाज़ नहीं रेस्पॉन्डिंग। आ रही। अब आ रही है आपको आवाज मेरी? आ रही है जी? फैसल, आवाज आ रही है आपको? आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी जी, डॉक्टर साहब, आपकी आपकी आवाज आवाज मुझे आ रही है। क्लियर आ रही है। डॉक्टर नहीं जी साहब की आवाज तो प्लीज। ठीक है। अच्छा प्लीज गो अहेड, मुझे नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। मैं ये कह रहा था कि जब जो ऑपरेशनल लेवल पे इसमें बहुत फायदा हुआ, क्योंकि इनुमरेटर जो है ना वो अ, चाहे वो पीबीएस के हों, चाहे वो सेंसस में हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग बाय एंड लार्ज काम करते हैं, बड़ी एक्सरसाइज है वो। तो उसमें ये बहुत ज़रूरी होता है कि उनकी मूवमेंट को आप ट्रैक कर सकें। फिर वो कॉल बेल या डोर को नॉक करके जब तक उन्होंने सबमिट नहीं किया क्वेश्चनर पे कि मुकम्मल हो गया, उसमें कितना टाइम elapsed हुआ, उसके मुख्तलिफ स्टेजेस में, इसको भी ट्रैक करना है। बहुत सारे शहरों में हाई राइज, तो वो इन्यूमरेटर के पास ये लीवे होता था कि जनाब वो सेकंड थर्ड फ्लोर पे जाए, हाउस होल्ड में से खाली एडल्ट्स का पूछे और बच्चों को गायब कर दे। तो ये हमारे हेल्थ में भी होता है, फिर उनको इम्यूनाइजेशन नहीं करनी पड़ती, तो यहाँ उनको इनोग्रेशन नहीं करनी पड़ती। बच्चे अगर वो दिखाएंगे नहीं तो ज़ाहिर काउंट भी नहीं करने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें थी। अब जब वो कागज़ पे हम करते थे, तो बाय द टाइम हमें इनका पता चलता था कि भाई ये इन्होंने गड़बड़ कर दी इनोमरेटर ने, इट वाज ओवर, और पॉसिबल नहीं होता था कि फील्ड में चले जाएं। अब आपके सामने ये डिजिटल डिवाइस पे चीज़ें आ रही होती हैं, तो ऑपरेशनल लेवल पे आप डेटा की क्वालिटी को बहुत अच्छी तरह ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ये फायदा हुआ। तो ये बहुत, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन अल्लाह का शुक्र है हो चुकी है। नाउ इट्स काइंड ऑफ ए हिस्ट्री। 7-8 साल पहले पीबीएस ने शुरू कर दी थी, सेंसस भी डिजिटली किया, मेजर सर्वेस किया, अभी ये जो हाइस एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्वे है वो भी किया, लेबर फोर्स सर्वे। तो अब वो डेटा कलेक्शन डिजिटली है। अब
उसका हर टीयर पे पता है। तो कोई इतनी अब वो अजीब चीज नहीं है पीबीएस में ये। That's very interesting. That's very interesting, and I hope that from now onward, all the data that PBS will be collecting will be through the digital means, right? यस यस। That's wonderful. So one more thing that might be related to the applied side of the data is basically I'm pretty sure that this household integrated economic survey will also be used to estimate new poverty numbers, because I think there's a poverty task force at the government level, या and they might be interested to do these kind of things. So how robust these numbers will be with that data, and that also because we have a number of other modules included in it, and number of other sectors of the economy are also part of this data. So how that will impact poverty estimation, or how it will make poverty estimation measurement more robust at the national and provincial level. अ, अ, अभी देखें इस सर्वे में आपके पास कंजम्पशन के नंबर्स आ गए हैं। और Sir, over to you. हेलो जी, एम आई ऑडिबल? आपको आवाज आ रही है फैसल? जी जी सर, आ रही है आवाज। मैं कह रहा हूँ कि देखें इस सर्वे में हमने कंजम्पशन के नंबर पूछे हाउस होल्ड से ऑन मोर देन 400 डिफरेंट कंजम्पशन कैटेगरी, जिसमें फूड शामिल है, जिसमें हेल्थ एक्सपेंडिचर शामिल है, एजुकेशन शामिल है, एनर्जी है, ट्रैवलिंग है, जो अप्लायंसेज हैं, मुख्तलिफ तरह की सर्विसेज हैं, इन सब पे हाउस होल्ड की कंजम्पशन पूछी है। इसी तरह इनकम या जो कैश फ्लोज उनके पास किसी भी तरह आ रहे हैं, कि उन्होंने लेबर मार्केट में इनकम अर्न की, उन्होंने दुकानदारी की, उन्होंने एग्रीकल्चर से प्रॉफिट लिया, या उनके पास कोई सोशल सेफ्टी नेट में है, रेमिटेंसेस पर उनका इन्हिसार है, या उनके पास वेल्थ है जो अपने को एसेट्स को डाइल्यूट करके यूज कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से हमने उनकी कंजम्पशन स्ट्रीम्स देखी, इनकम स्ट्रीम्स देखी, और उसको बहुत अच्छी तरह मतलब कोशिश किया कि उसके डिफरेंट जो सुपरवाइजरी लेवल है उस पर चेक करें कि डेटा ठीक है। तो डेटा की क्वालिटी को हमने इंश्योर करने की कोशिश की। फिर जो इसमें क्वांटिटीज पूछते हैं और प्राइसेस भी पूछते हैं। तो बाद औक़ात अक्सर बल्कि आजकल लोगों को प्राइसेस की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, फिर भी उस कम्युनिटी लेवल में जो प्राइस लेवल था उससे हमने चेक किया, ताकि जो पर हाउस होल्ड कंजम्पशन है वो कोई बहुत डिविएट ना कर रही हो जो प्राइस लेवल्स हैं अ, उनके मुकाबले में। तो ये काफ़ी रोबस्टली डेटा लिया गया है। हम सबको पता है कि पिछले 3-4 साल के जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं कोई अच्छी नहीं है। पाकिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम में है, डिमांड सप्रेस्ड है, इंपोर्ट सप्रेस्ड है, थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर ने थोड़ा सा टिकअप किया है, लेकिन बाय एंड लार्ज 2 साल तक वो काफ़ी डॉर्मेंट म्यूटेड था। तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, उसकी वजह से जो हमारा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, स्पेशली उसमें टेक्सटाइल, वो कोई इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा। उसका इफेक्ट हमारी एक्सपोर्ट्स में भी देखा जाता है। तो ये चीज़ें, और फिर ये चीज़ें एम्प्लॉयमेंट में भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं। लेबर फोर्स सर्वे में भी अनएम्प्लॉयमेंट 7.1% है, बढ़ गई है पिछले लेबर फोर्स की निस्बत। तो ये सब चीज़ें इसी तरफ लेके जा रही हैं कि हाउस होल्ड की कंजम्पशन बढ़ी है, इनकम बाय एंड लार्ज स्टैग्नेंट है, और सेविंग शायद उतनी है या कम हुई है। तो अब इनमें ये एक्सपेक्ट किया जाए कि जो पावर्टी एस्टिमेशन होगी तो ज़ाहिर है ये सब अवामिल उसको भी इफेक्ट करेंगे। और वी नो दैट व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन एक्सपेक्ट इन द पावर्टी नंबर्स। अब नाउ दिस हैज टू बी सीन वंस इट इज एस्टिमेटेड एंड डिसेमिनेटेड बाय प्लानिंग कमीशन के वो लेवल्स क्या होंगे। True. Thank you so much. That was my follow up question, क्योंकि जिन दिनों में ये डेटा भी कलेक्ट हो रहा होगा, these were the times when we had floods also, and prices were skyrocketing as well. So that definitely have serious implications for the collection of data, prices, and consumption patterns also. So we have to keep this in mind as well. So that's wonderful. One thing that is also coming to academics and researchers like me and others in our mind is that
why we don't have any panel data at either provincial, district, or national level. One, two, related to it is basically, do we means PBS have any such plan to have some panel data so that we know how things are moving and things like that. So your take on that, sir? बिल्कुल सही कहा फैसल आपने, बड़ा गैप है। जो हम रिसर्च करते हैं तो हमें पता है कि हम बायसेस मुख्तलिफ तरह की उनको दूर रखने के लिए जो हमारा एक बहुत ही टेस्टेड तरीका है वो पैनल डेटा है। तो अब पैनल डेटा हमारे पास कभी कभार जैसे वो प्लानिंग इसमें पाइड ने कुछ पैनल सर्वेस किए हैं, शायद कुछ और यूनिवर्सिटीज ने किए अपने लेवल पे। अब मुझे नहीं पता कि वो कितना रिप्रेजेंटेटिव हैं या उसमें कितने साइंटिफिक रहे हैं वो इदारे, लेकिन बाय एंड लार्ज पाकिस्तान वीक है पैनल डेटा में। मैं आपको बताऊं कि 2023 नवंबर में पाकिस्तान ने क्वार्टरली जीडीपी देनी शुरू की। उसके बाद हमारा भी सारा एम्फेसिस इस पर है कि क्वार्टरली आपके पास जीडीपी आती है, जो आपके इन्फ्लेशन के फिगर्स हैं मंथली हैं, सो क्वार्टरली कवर्ड। तो अब जो लेबर फोर्स सर्वे है उसको हम क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना शुरू करेंगे, इधर जो कन्वेंशनल फील्ड सर्वे के थ्रू या कोई मिक्स डेटा कलेक्शन का मोड करेंगे। तो हमारा ये मानना है कि जो क्वार्टरली लैंडस्केप है आपका मैक्रो इकोनॉमी का, उसमें आप जीडीपी तो लेके आ गए, लेकिन आपको वेज एम्प्लॉयमेंट वो भी लेके आनी पड़ेगी, तो आपकी तस्वीर पूरी होती है। तो ये लाजमी करना है हमने। अब इंशाल्लाह इस फिस्कल ईयर से 26-27 से जो शुरू होगा जून से, उसके फौरन बाद हम ये कोशिश ये करेंगे कि लेबर फोर्स सर्वे स्पेशली उसको हम एक पैनल डेटा उसी में से लिमिटेड लोग निकाल के, लेकिन उसमें फिर हमें थोड़ा प्लान करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हमारे जो सिटीजन्स की तरफ से इतनी पार्टिसिपेशन नहीं होती। ये हमने पीबीएस में एक से ज़्यादा दफ़ा देखा कि जब हमने कोई इस तरह की इनोवेशन करने की कोशिश की कि लोग खुद अपने टाइम पे अपनी मशीन्स में वो डेटा दे दें, तो व्हाट आई ऑब्जर्व दैट पीपल वर नॉट फोर्थ कमिंग, एंड वी ट्राई टू डू सिग्निफिकेंट कम्युनिकेशन आउटरीच हमने बढ़ाई, लेकिन वो मिला नहीं। तो ये है बिल्कुल जहन में करना है पैनल डेटा, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा इसमें। प्रोबेबली 27 में इंशाल्लाह हम पैनल डेटा लेबर फोर्स का तो शुरू करेंगे। Okay, that's wonderful. Labor force का panel data will be a very, very wonderful step forward for not only policy making but also understanding the welfare and its limitation and how to make things happen for the laborers of Pakistan, inshallah. That's wonderful. Thank you very much for telling us this. Also, one thing that I would like your comment on is basically utilization of these statistics and numbers and data that we collect. For example, I think 2025 remain very, very busy year for Pakistan Bureau of Statistics and for you as well, that you collected number of data sets. I think five, though I can recall, but I don't know others. There might be that I might have escaped or missed. So how these data sets, numbers are used, utilized, and can be utilized in a better way to make some policy dent for the well-being and welfare of the people. Sir. आई थिंक आपको शायद डेटा फेस्ट में फैसल आप भी आए थे, उसका जी मकसद बिल्कुल। यही था कि डेटा यूज बढ़ाया जाए। उसका जो टैगलाइन थी वही थी कि फ्रॉम नंबर्स टू लाइव्स। तो डेटा यूज पॉलिसी में बढ़ना चाहिए, डिसीजन मेकिंग में बढ़ना चाहिए, लेकिन उसमें अभी तक हमने कोई खातिर खा काम नहीं किए। जैसे पब्लिक इन्वेस्टमेंट लगभग 4 ट्रिलियन की होती है, सूबों के जो सालाना तरक्याती मंसूबे होते हैं वफाक के, अब उसमें कहीं हमने नहीं लिखा प्लानिंग मैनुअल में कि रिजल्ट फ्रेमवर्क में लाजमी आप एनएसओ का डेटा यूज करें। क्यों नहीं डलवाते ये? हो सकता है एनएसओ आपकी निकम्मी नालायक हो, लेकिन आप वो लिखवा देंगे तो उसको भी फिर मेहनत करना पड़ेगी कि भाई रिजल्ट फ्रेमवर्क के लिए आपको बेस लाइन, मिड लाइन, एंड लाइन के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो फिर बजट भी मांगेगी, काम वाम करेगी, हिलेगी थोड़ा। लेकिन अगर वो एपेटाइट नहीं होगी सिस्टम में, वो बड़ा आसान है, बड़ा मुमकिन है। सेंसस का डेटा है आपके पास, उसको आप एक डिजिटल कोई लैंडस्केप उसका दिखा दें, किसी सपोज पटवार लेवल पे दे दें,
तहसील लेवल पर दे दें, आपको पता चल जाए 5 से 16 उम्र के लड़कियां लड़के कितने हैं, या अंडर 1 और अंडर 5 बच्चे कितने हैं। तो अंडर 1 अंडर 5 के बच्चे हैं, वो आपको क्या दिखा रहे हैं? वो आपको इम्यूनाइजेशन की डिमांड दिखा रहे हैं, और आपकी आउटरीच है इम्यूनाइजेशन सिस्टम की, प्राइमरी हेल्थ केयर की, वो आपको सप्लाई दिखा रहे हैं। अब अगर इसमें मिसमैच है तो भी आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। फिर अगर आपका तहसील हेल्थ ऑफिसर क्लेम करता है कि मैंने इतने हजार कर दिए इम्यूनाइज, और फलानी फलानी वो डिजीजेस के अगेंस्ट, अब वो प्रिवेंटेड हैं, तो उसका आप दावा पकड़ लेंगे, क्योंकि वही सब इंफॉर्मेशन आप टैबलेट्स में भी डाल सकते हैं। सेम कैन बी डन फॉर एजुकेशन। तो ये आप सप्लाई और डिमांड का मैच या मिस मैच आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से कम ब्रॉड लेवल पे प्लानिंग कर सकते हैं, और टारगेट सेटिंग कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि कहाँ आपको अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर या ब्रिक एंड मॉर्टर से आपको अपनी सर्विस बढ़ानी पड़ेगी, कहाँ आपको ब्रिक एंड मॉर्टर मौजूद है, आपको गवर्नेंस इंप्रूव करना पड़ेगी, कहाँ आप वो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है तो आप सोचें पीपीपी के बारे में, मिक्स के बारे में सोचें। दैट कैन बी डन फॉर सोशल सर्विसेज, दैट कैन बी डन फॉर इकोनॉमिक सर्विसेज। लेकिन ज़रूरी है कि पहले ये आप उसूली तौर पे तय करें कि आप उसको इस्तेमाल करेंगे, तो फिर उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स आएंगे, उसमें ट्रेनिंग के एस्पेक्ट्स आएंगे, कैपेसिटी के एस्पेक्ट्स आएंगे, वो सब हो। लेकिन अगर आप इस्तेमाल करना कहीं लिखेंगे नहीं, तो फिर ज़ाहिर है कभी भी नहीं होगा। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर भी इसका बहुत ही एक्सटेंसिव यूज़ कर सकता है। इकोनॉमिक सेक्टर्स में ख़ास तौर पे हम जो हमारे डिसीशन है, उसमें हम रिस्क असेस नहीं कर पाते बहुत सारी चीज़ों का। जब रिस्क असेस नहीं कर पाते तो फिर बैंकेबल नहीं होती, तो फिर हमारी जो सेविंग्स है वो हमारी बैंक्स के जरिए इन्वेस्टमेंट की शक्ल नहीं लेती, ग्रोथ नहीं होती। लेकिन ये इस तरह का अगर आपके पास एक फ्रेमवर्क होगा जहां लोग इन्वेस्टर या जो स्टेक्स ले रहे हैं उन इकोनॉमिक सेक्टर में, वो कोई रिस्क असेस कर सकेंगे, तो फिर जाहिर है वो फिजिबिलिटी उसकी बुनियाद पर वो बैंक में भी जमा करा देंगे। बैंक को अगर समझ में आएगी वो पैसा दे देगा और निज़ाम आगे बढ़ेगा। अब चूंकि ये इस तरह साइंटिफिकली होता नहीं, गुफ्तगू नहीं होती, तो ये सब अच्छी चीज़ें भी नहीं होती आमतौर पे। डेटा फेस्ट इसीलिए था कि हम स्टेक होल्डर्स को बिठा के, जो डेटा प्रोड्यूसर्स को भी बिठाएं, पीबीएस भी बैठे, स्टेक होल्डर्स पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के वो भी बैठे, टेक वाले भी बैठे हैं जो ये सारे टेक्निकल काम करते हैं इन सब चीज़ों में। और फिर ये गुफ्तगू शुरू हुई और इस्तेमाल शुरू हो। डेटा का यूज़ बढ़ेगा ना, तो फिर पता चलेगा कि पीबीएस के दावे ठीक हैं या बिल्कुल ही बेकार हैं। फिर आप फैसल कहेंगे जनाब नहीं साहब, बातें आपने बड़ी की लेकिन डेटा तो आपका बड़ा बेकार है, तो ठीक है मैं इंप्रूव करूंगा, आई विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। लेकिन जब इस्तेमाल ही नहीं होगा तो ये पता ही नहीं चलेगा कि वो डेटा अच्छा था, वो बुरा था, या उसको कैसे इंप्रूव किया जाए। तो ये कोशिश ये थी कि कम से कम डेटा यूज की गुफ्तगू हो, जो सोशल और इकोनॉमिक सेक्टर्स में जो जो उसके पोटेंशियल यूजेस हैं उस पर एक माने वाली गुफ्तगू हो, मीनिंगफुल डिस्कशन हो। ये किया था। Great, thank you. Thank you very much. It's wonderful and interesting to listen to your opinion on things that we sometime speculate, sometime exaggerate, sometime say one or the other way. So अल्लामा इकबाल का एक शेर है, वो मुझे याद आ रहा है। वो कहते थे कि मुब्तलाए दर्द कोई उज़्व हो रोती है आँख, and in a particular context of Pakistan and also elsewhere as well, जो आँख का रोल है वो सोसाइटी में वो लोग प्ले करते हैं जिनको इन्स एंड आउट्स का पता होता है. सो इन Pakistani context, in my opinion, it will be policymakers, academics, people who build, generate, and develop a new generation for global citizens and global challenges. And in that particular context, how far Pakistan Bureau of Statistics is going or taking steps to develop collaboration with academics to bring in certain aspect of policy making that might not be in the purview of maybe policymakers at the moment, or maybe overlooked or somehow missing, so that academics can play their vital role in developing robust policy making. So what's your take on that, sir? एकेडमिक्स के साथ इंगेजमेंट उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। लेट मी फर्स्ट स्टेट इट वेरी कैंडिडली, ये ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन कम है अभी। अभी जो सारी गुफ्तगू हुई कि जब हमने डिमांड और सप्लाई की बात की, गवर्नेंस की बात की, पॉलिसी फेलियर्स की बात की, पॉलिसी चैलेंजेस की बात की, लर्निंग की बात की। अब ये
अभी अगर डेटा की लेंस से हमें देखना चाहें तो अगर इस पूरे सफर को हम कहीं ट्रैक करना चाहेंगे तो पहले तो रिजल्ट फ्रेमवर्क में रखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि वो पॉलिसी या उस पॉलिसी के बेस पर जो भी इंटरवेंशन थी, कोई प्रोजेक्ट है, प्रोग्राम था, उसके जो भी मकासद थे वो आउटकम आए कि नहीं आए या वो आउटपुट आए कि नहीं आए। तो ये जब तक आप रिजल्ट फ्रेमवर्क में एम्बेड नहीं करेंगे तो आपकी पॉलिसी की लर्निंग भी नहीं होगी, इंप्रूवमेंट भी नहीं होगी, 360 का साइकिल आपका नहीं होगा। ये काम एकेडेमिया का ही है। तो अब वो एकेडेमिया, जो मैंने थोड़ी सी मतलब अनफॉर्चुनेट बात भी मैं कहूँगा, जो मुझे सूरत हाल नज़र आती है, माइक्रो डेटा का यूज़ यूनिवर्सिटीज़ में मुझे ज़्यादा नहीं नज़र आता। True, मतलब मैंने अभी तक नहीं true. देखा कि इकोनॉमिक्स में या सोशियोलॉजी में या पॉलिटिकल साइंस में कोई जो क्लासिक स्टडीज़ हों, यूरोप में हुई हों, अमेरिका में हुई हों, फार ईस्ट में हुई हों, लातीनी अमेरिका में हुई हों, तो हमारे प्रोफेसर्स ने जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो क्लोजेस्ट डेटा हैं उसको इस्तेमाल करके वो क्लासिक चीज़ें पढ़ाई हों अपने क्लासरूम में, उन्हीं मजमूनों में, अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट लेवल पे मैंने तो एक कम देखा है। बस यही देखा है इससे कि जो हमारी अच्छी किताब जैसे वोल्ड्रिज है, बड़ी अच्छी किताब है इकोनोमेट्रिक्स की। तो एट बेस्ट व्हाट वी हैव सीन और वी माइट एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर यूनिवर्सिटीज के वोल्ड्रिज और अमेरिकी डेटा पे और यूरोपियन डेटा पे वो रेप्लिकेट कर देगा प्रोफेसर। ये भी अगर कर दे तो बड़ी बात है। उससे हम ये अभी तक एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे कि वो पाकिस्तानी डेटा पे वो स्टडीज को रेप्लिकेट करेगा। ये अगला स्टेप होगा। उसके बाद आप एक्सपेक्ट करें कि वो प्रोफेसर इस काबिल हो जाएगा कि वो पॉलिसी के लैंडस्केप में होगा और उसको ये समझ होगी कि रिजल्ट फ्रेमवर्क से लेके पॉलिसी लर्निंग तक, जब तक मैं हर चीज में ये डेटा को क्लियरली नहीं देखूंगा तो मैं तो पॉलिसी का लर्न ही नहीं कर सकूंगा कि इसने अच्छा किया, बुरा किया, या फेल हुई तो क्यों फेल हुई। तो एकेडेमिया को ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। अब बजाय इस पे ये गुफ्तगू करें कि भाई किसका कसूर है, गवर्नमेंट का है या एकेडेमिया का है। बात यह है कि प्रोफेसर्स अच्छी यूनिवर्सिटीज से ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के साथ इनको कोई सैबेटिकल लेना चाहिए, कम से कम 2 सेमेस्टर या 1 साल। तो उनको पता चलेगा कि उस वक्त गवर्नमेंट की मुख्तलिफ सोशल या इकोनॉमिक साइड में किस किस तरह की इंटरवेंशन है, क्या क्या प्रोजेक्ट कर रही हैं, कौन कौन सी पॉलिसी लिखी हैं। फिर वो उस पे देखें कि जनाब उन पॉलिसी की यूजफुलनेस को या इफेक्टिविटी को असेस करने के लिए जो जो रिसर्च एम्बेड होनी चाहिए थी, जो जो डेटा आना चाहिए था, वो वैसे है कि नहीं है। तो फिर हम एक्सपेक्ट करें कि अप्लाइड पॉलिसी रिसर्च या अप्लाइड पॉलिसी टीचिंग किसी अच्छी तरह हमारी यूनिवर्सिटीज़ में होना शुरू हो। अभी उसमें बहुत गैप है। Thank you so much. Wonderful, and I'm appreciating your very candid and honest answers on some of the very pertinent questions. Thank you very much. With us we have Ali Kamal Bhai. If you have anything to add to the discussion that is going on, please go ahead, Ali Bhai. अली भाई आवाज आ रही है? अली भाई आवाज आ रही है? चलें, जब तक हम अली अली भाई की आवाज का वेट करें, आई आस्क वन मोर थिंग ऑन दैट कि हमारे यहाँ जो मिनिमम वेज का चैलेंज है और उसके साथ जो इनफॉर्मल इकोनॉमी का चैलेंज है, इन दोनों चीज़ों को जहन में रखते हुए हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू यूटिलाइज लेबर फोर्स सर्वे डेटा एंड द गिग इकोनॉमी डेटा, क्योंकि वहाँ पे भी हमें काफ़ी सारे चैलेंजेस ऐसे आ रहे हैं टैक्स नेट में उनको लाना या अदरवाइज। तो हाउ फ्रॉम द पॉलिसी साइड, और ये पॉलिसी साइड के क्वेश्चन मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि यू रिमेन इन द सिंध गवर्नमेंट, यू ऑल्सो रिमेन इन द प्लानिंग कमीशन, so you have some sort of experience also on how these numbers and data at micro level can be utilized to bring in some important element for better public policy making. So your comment on that, sir? आपका सवाल ये है कि जो गिग इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में आप
डॉक्यूमेंटेशन, मतलब मैं थोड़ा समझ नहीं पाया कि आर यू ट्राइंग टू कि कोई पॉलिसी का रिस्पांस मुझसे पूछ रहे हैं एक से ज्यादा चीजों के नेक्सस पे, फॉर्मेलिटी, गिग। So there are informality in the economy, that a lot of informal economic activity is going on and informal labor also exists. And then secondly, there's gig economy, which is also somehow not registered. So both have this informality in ओके। their particular way of working. So how this labor force survey data can be utilized for better policy making and bringing them into the formal network. देखें, लेबर फोर्स सर्वे हाउस होल्ड सर्वे और आपको ये बता देता है कि कौन से हाउस होल्ड फॉर्मल सेक्टर में अपनी लेबर सर्विसेज दे रहे हैं और कौन से इनफॉर्मल में दे रहे हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट डेटा नहीं है। अब जो आई वाज जस्ट सीइंग, किसी साहब ने कमेंट किया था और वो उसको आई एम यूजिंग दैट कमेंट। कमेंट ये था कि बिजनेस रजिस्टर का डेटा पीबीएस ने अभी तक शेयर नहीं किया, तो शेयर करना है, लेकिन थोड़ा उसको एनोनिमाइज करना पड़ेगा हमें। जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, रिस्पोंडेंट के डेटा, उसको थोड़ा सा हमें देख के फिर विल शेयर इट। अब देखें, ये जो लेबर फोर्स डेटा को आप अगर आपको फ्यूज करना पड़ेगा उस बिजनेस रजिस्टर के साथ, जो कि सेंसस हमने किया, उसमें हमने इकोनॉमिक फ्रेम भी जनरेट किया है। अब वो इकोनॉमिक फ्रेम बिजनेस रजिस्टर को उसने बहुत इनरिच कर दिया है। आपके पास 7 मिलियन से ज्यादा इकोनॉमिक इस्टेब्लिशमेंट्स की इंफॉर्मेशन है कि किस इंडस्ट्रियल कैटेगरी में है, कितना उनका लेबर साइज है। तो लेबर टर्नओवर से नहीं, लेबर साइज से हमने उसको देखा। तो अब ये चीजें अगर आप मैप करें कि हाउस होल्ड किस, तो अभी आपने पैनल डेटा की बात की थी ना, तो पैनल से भी आप एक स्टेप जाएं और ये जो मैं बात कह रहा हूं कि इकोनॉमिक फ्रेम को और लेबर फोर्स की इनफॉर्मेलिटी को आप जब मैच करेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा ना कि और फिर आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि किसी स्टेज पे आपको मैचिंग सर्वे करना है, जिसमें हाउस होल्ड ने किस फर्म को अपनी लेबर सप्लाई दी, वो डेटा लेके आए, और फिर जो फर्म जहां उसने लेबर सप्लाई दी वहां वर्किंग कंडीशन, डिसेंट वेज, फॉर्मेलिटी वगैरह वगैरह, उन चीजों का डेटा लेके आए, तो फिर आपको मैचिंग डेटा मिलेगा। तो किसी स्टेज पे आपको यहां भी जाना पड़ेगा। तो बिजनेस रजिस्टर की इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक फ्रेम की इंफॉर्मेशन और लेबर फोर्स की इंफॉर्मेशन को मिला के, देन यू आर बेटर एबल टू से समथिंग अबाउट द डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी। जो जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, लोग अपनी लेबर सर्विस दे रहे हैं, उसमें वो कैसे इफेक्ट कर रही है। वेजेस जो फॉर्मल सेक्टर में लोग अपनी लेबर सर्विसेज दे रहे हैं, इनफॉर्मल में उसमें कितना फर्क है। जो बाकी वेरिएबल्स हैं, वर्किंग कंडीशन और जो दूसरे बेनिफिट्स हैं, वो आप इसलिए नहीं कर सकते कि लेबर फोर्स में एस्टेब्लिशमेंट का डेटा नहीं है, सिर्फ हाउस होल्ड से डेटा है। ये उस वक्त ये मुकम्मल पिक्चर आएगी जब ये दोनों से इंफॉर्मेशन हो। दूसरी बात की थी आपने गिग इकोनॉमी वाली, तो बाय एंड लार्ज ये अनडॉक्यूमेंटेड है। अब ये देखें कि जो गिग इकोनॉमी, जो मिसाल ले लेता हूँ बाइकिया, या आप ले लें और जो रिटेल है, जो ऑनलाइन रिटेल है हमारी, OLX ले लें। अब जब आप इनको जब आप डेटा, बिग डेटा की इंटीग्रेशन की बात करेंगे, कि पहले तो आपका पीबीएस का जमा किया हुआ डेटा जो सेंसस और सर्वे से आ रहा है, नेक्स्ट स्टेप पे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा जो मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स या गवर्नमेंट की फंक्शनरीज हैं, सोशल और इकोनॉमिक सर्विसेज दे रही हैं, उनका डेटा आ रहा है, और तीसरे लेवल पे बिग डेटा। जब ये आप इस बिग डेटा को इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे आफ्टर पासिंग देम थ्रू सम स्टैंडर्ड्स, कि वो नेशनल स्टैटिस्टिक्स से करीब आए, तो फिर आपको ये इंफॉर्मेशन मिलनी नजर आ जाएगी कि OLX किन किन शहरों में, किन किन सेक्टर में कितनी कितनी मर्चेंडाइज दे रहा है। ठीक है। और इसी तरह आपको लेबर की इंफॉर्मेशन मिलने लग जाएगी। देन दैट डेटा विल बी एबल टू सप्लीमेंट और इन्फॉर्म अस ऑन द डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी उन दो इन दो सेक्टर्स। फिर वो अभी तो अब आपके पास वो किसी बेसिक फ्रेमवर्क पे, किसी बेसिक लैंडस्केप पे अभी हम ये गुफ्तगू करना शुरू की है हमने, कि जनाब पहले तो आपका सेंसस और सर्वेस का डेटा होगा, उसके बाद आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा होगा, वो आएगा, नेशनल डेटा के साथ मिलेगा, और तीसरे स्टेज पे ये जो बिग डेटा है, जिसमें पॉइंट ऑफ सेल है, जिसमें ये रिटेल्स हैं, जिसमें ये ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारी गिग लेबर सप्लाई और गिग कंजम्पशन से जो इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, उन फर्म्स को हम रिक्वेस्ट करें कि यार खुदा के वास्ते स्टैटिस्टिक्स तो शेयर करो। ठीक है, डेटा ना दो आप,
तो ये हमें पता तो चले कि किन की वर्किंग कंडीशंस क्या हैं, इसमें वेज क्या है, इसमें सीजनैलिटी क्या है। लेकिन जब तक वो आएगा नहीं, उस वक्त तक आपके पास ये पिक्चर भी पूरी नहीं होती। Thank you very much, sir, for being very candid and honest. So, if you allow, we take couple of questions from the audience who are attending the lecture. So, I request Nasibullah Saab, who has raised his hand from a couple of minutes, if he can be brief, introduce yourself briefly, and then ask brief questions, please. Nasibullah. By the time we don't have Nasibullah around us, can we go to Zubair Faisal Abbasi Sab? Zubair Sab, if you can hear me, please go ahead with your question. जी अस्सलाम वालेकुम थैंक यू वेरी मच फेडरल Pakistan Bureau of Statistics and also Pakistan Economic Forum for this opportunity to learn from Naeem साहब। मेरे जहन में सिर्फ एक ब्रीफ सा क्वेश्चन था, और आपकी बहुत अच्छा ये सारा काम, मतलब इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल प्राइड एज वेल, वी आर मेकिंग गुड गुड प्रोग्रेस इन स्टैटिस्टिक्स। मेरे जहन में ये क्वेश्चन ये था कि जब हम पॉलिसी रेलेवेंस की बात करते हैं तो उसमें शायद दो पॉलिसी रेलेवेंट डाटा की जब बात करते हैं तो दो इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हमें नज़र आते हैं। एक ये कि स्टैटिस्टिक्स शुड नॉट बी ओल्ड इनफ, लाइक दिस शुड बी, अगर 6 मंथ से भी ज़्यादा नए हो, मुझे बहुत करंट सिचुएशन का पता हो, देन परहैप्स मेरे लिए ज़्यादा रेलिवेंट है टू मेक पॉलिसी डिसीजंस। अगर ये 3-4 साल पुराना है तो ग्राउंड सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई होती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, या वर्स ऑफ हो गई होती है, इम्प्रूव हो गई होती है। तो मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि इसके इसके एक तो वो इंडिकेटर्स को पॉलिसी रेलिवेंट होना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें अगर हेल्थ की रिसोर्स एलोकेशन पर डिसीजंस करने हो तो अ, कोई भी पाकिस्तान का जो जो रिसोर्स एलोकेशन को अफेक्ट कर सकता हो, वो वाला डाटा शायद हमें नहीं मिलता। उसके लिए दोबारा से माइक्रो सर्वेज हमें करने पड़ते हैं। मतलब इसकी मुझे लगता है कि इसका स्कोप बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इस पे ज़रा बात कीजिएगा, टाइमलीनेस और स्कोप ऑफ डाटा फॉर पॉलिसी रेलिवेंस। थैंक यू वेरी मच। आपने जुबैर फैसल साहब बिल्कुल सही बात की। देखिए, आई मीन थिंग्स आर वेरी सिंपल, बट सिंस वी डू नॉट फॉलो कॉमन सेंस ऑफन, सो वी मेक बेजरीज फॉर आवर सेल्फ। डेटा यूज की हम बात करते हैं, तो यूज का मतलब जाहिर है कोई यूजर होगा जब ही यूज होगा। तो जो डेटा कलेक्शन एक्सरसाइजेज हैं, PSLM है, हाइस है, PDHS है, मिक्स है, लेबर फोर्स सर्वे है, इसमें ठीक है, आपने शायद 20 साल पहले कोई बहुत बड़ी यूजर काउंसिल बिठाई होगी और सबने तय किया होगा कि हमें ये डेटा चाहिए। तो अब 20 साल में ग्राउंड रियलिटी हैव चेंज, यू सो राइटली सेड। तो एंड वी आर कॉग्निजेंट टू दिस दैट दिस शुड स्टार्ट फ्रॉम लिस्टिंग टू द स्टेक होल्डर्स, स्पेशली द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, हु कोई भी अच्छी बुरी पॉलिसी हो, प्रोजेक्ट्स वो सूबों में ही हो रहे हैं, बट ICT में तो बहुत थोड़ा है, कुछ भी नहीं है। तो ये हम एक जो वर्क कैलेंडर है PBS का, वो शुरू ही होना चाहिए स्टेक होल्डर की यूजेस से, कि उनकी डिमांड क्या है। एक चीज तो ये गैप रहा, काफी अरसे तक नहीं कर सके, लेकिन नाउ वी आर स्विचिंग बैक टू नॉर्म। अब हम आई होप कि इसी क्वार्टर में वो एक कन्वीन कर पाएंगे, हम सूबों से स्टेक होल्डर को बुलाएंगे, फेडरल से भी, लेकिन ज़्यादा फोकस उनका सूबों पे होगा, रिसर्चर पे, पॉलिसी के लोगों पे होगा, और उनकी डेटा की ज़रूरतें सुनेंगे। और फिर इसको हम या तो नए इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सोचेंगे, नए मॉड्यूल्स के बारे में सोचेंगे, नए क्वेश्चंस के बारे में सोचेंगे, फ्रीक्वेंसी के बारे में सोचेंगे। अगेन यू राइटली सेड। थोड़ा सा आपकी बात से मैं, आई मीन आई कैन ऐड टू दैट, वो टाइमलीनेस है ना, वो है तो अम्ब्रेला टर्म, लेकिन उसका इस्तेमाल थोड़ा सा स्पेसिफिक कर लें तो बेहतर है। सोशल इंडिकेटर्स का आप 1 2 साल में बाल भी बीका नहीं कर सकते। दिस नॉट ओनली ट्रू फॉर पाकिस्तान। बहुत ही अच्छी कोई कॉन्शियस नेशंस हो तो सोशल इंडिकेटर भी महीनों में या 1 2 साल में चेंज कर लें, यूजुअली टेक डेकेड्स। लेकिन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में तो अगर आप कुछ महीने लेट हो गए तो वो रेलेवेंस लूज कर जाता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो किस सर्वे इंस्ट्रूमेंट की कितनी फ्रीक्वेंसी हो, ये डिपेंड करता है कि वो कितना आसानी से, अगर वो बिहेवियरल है, रिलीजियस है, तो और देर लगेगा उसको चेंज करने में।
तो इसका मतलब है कि जो सर्वे इंस्ट्रूमेंट से लोगों के आप बिहेवियर जानने की कोशिश कर रहे हैं या रिलीजियस टेंडेंसीज जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें तो आप थोड़ा सा और भी गैप लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इकोनॉमिक में, हेल्थ सीकिंग बिहेवियर में, क्योंकि इसमें जेब से पैसा जाता है, तो उसमें फर्क पड़ेगा बिल्कुल। दवाइयाँ कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। तो जो चीज़ ज़्यादा जल्दी आपको फ़ायदा या नुकसान पहुंचा देती है, जो आपका इनफरादी तौर पर या माशरती तौर पर ख्याल है, तो उसमें तो आप को सर्वेस जल्दी करना पड़ेंगे, क्योंकि लोग स्विच कर जाएंगे। लेकिन जिस पे अगर इंडिविजुअली या सोसाइटली हम कहते हैं कि जनाब ठीक है, हमारी बला से, तो इनडिफरेंट हो उस पे, तो वो फिर बड़ी देर से चीज़ें होती हैं। विच इज़ ट्रू फॉर एजुकेशन, क्योंकि अब इसको हमने कमोडिटी के तौर पे ले लिया है, तो सभी खरीद रहे हैं। तो एजुकेशन हमारे उसमें नहीं है, मेन स्ट्रीम के डिस्कशन में नहीं आती। हेल्थ केयर आ जाता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या एम्प्लॉयमेंट की सूरत हाल आ जाती है, एजुकेशन मेन डिस्कोर्स में कम ही आता है। आई होप दिस आंसर्स टू योर क्वेश्चन। Great, thank you, sir. And then now we have Nasibullah Saab. Nasibullah Saab, please go ahead. Assalamu alaikum, sir. Thank you for giving me the chance to speak to the respected participants and respected host. अच्छा सर, मेरा बेसिकली एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि आई वुड पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा डॉक्टर साहब का कि उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स किए हाईएस्ट डेटा और पीएसएलएम डेटा को के ऊपर। इन्होंने एसडीजीज के साथ इसको अलाइन किया हुआ है, सेवन आउट ऑफ 17 8 to 9 एसडीजीज गोल्स के साथ अलाइन किया हुआ है, और फिर 62 जो इंडिकेटर्स है एसडीजीज उनके साथ हाईएस्ट और पीएसएलएम डेटा को अलाइन किया हुआ है। दैट इज़ वेरी मच अप्रिशिएबल। मैं चूंकि एक एकेडमिक रिसर्च कंडक्ट कर रहा हूँ और आई एम इन बिटवीन, आई एम यूजिंग हाईएस्ट डेटा एंड आई वुड लाइक टू कंपेयर हाईएस्ट डेटा 2025 और 2019-20 का जो डेटा है। सो सर, बेसिकली व्हेन दिस डेटा विल बी अवेलेबल ऑनलाइन और आई कैन एक्सेस थ्रू अनदर वे, आई वुड encourage your answer please. तो ये कह रहे हैं कि पीएसएलएम जो लेटेस्ट है 24-25 का, उसका माइक्रो Highest, डेटा कब तक yeah, अवेलेबल होगा? आइज yes sir, बेसिक। नेक्स्ट वीक में highest, yes. इंशाल्लाह अवेलेबल होगा ये। अब जो कमिंग वीक शुरू होगा ना, इसमें किसी दिन वेबसाइट पर होगा ये। Okay, thank Inshallah, you sir, that's great. so Thank you. nice sir, So, so nice sir. next is Maqsood Sadiq Saab from Population Council. Sir, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम welcome. सलाम, कैसे मकसूद साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी थैंक यू वेरी मच जी, आपने टाइम दिया संडे को, और जो है वो बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है। मेरा सर सवाल है सेंसस के डाटा के बारे में सर। बेसिकली जाहिर है कि आप जो है IPUMS, उसके ऊपर सर हमारा 3 सेंसस का डाटा जो है 1973, 1981 और 1998 का 1% सैंपल डाटा करके सर वो पड़ा हुआ है, जो कि हम लोग उसको यूज करते हैं। और ज़ाहिर है वो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स और फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने ही दिया होगा। उसके बाद फिर जो है वो मेरी उनसे IPUMS वालों से बात हुई कि जी जो 2017 का डाटा है वो भी, वो उन्होंने कहा जी कि नहीं, हमें नहीं उन्होंने दिया, और अभी तो 2023 का डाटा भी। तो सर अगर ये 1% डाटा जो है, जो एक बड़े अच्छे एक बेहतरीन तरीक़ेकार होता है, तो ये डाटा अगर आप रिलीज करके IPUMS के साथ, जहाँ में हमारे बाकी 3 सेंसस का डाटा पड़ा हुआ है, ये डाटा भी अगर वहाँ रखा जाए या कम से कम हमें लोकली अवेलेबल हो, तो ये सर एक बहुत बड़ा, एक समझ लें कि अब रेवोल्यूशन होगा, एक बहुत बड़ा एक इनकलाबी स्टेप होगा पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स से, कि ये जो डाटा है 2017 का 2023 का, इसका भी 1% सैंपल ड्रॉ करके और इसको पब्लिक के लिए अवेलेबल करते। जी थैंक यू जी। कैनॉट अग्री मोर। ये इट इज़ इन द प्रोसेस, और जो पब्लिक यूज फाइल्स हैं सेंसस की 2023 वाली, ये हमारी पूरी कोशिश होगी कि पहले क्वार्टर में ही, ये जो जनवरी से मार्च तक का है, इसमें ये वेबसाइट पे हम दे दें। इसमें जो प्रोटोकॉल से गुजारने के बाद ज़ाहिर है उसको एनोनिमाइज और आपको काफ़ी कुछ करना पड़ेगा, तो ये इन प्रोसेस है। और सर 2017 का डाटा सर वो भी 2017 का उसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि वो डेटा कलेक्शन सारी वो थी, मैनुअल थी। तो लेकिन जो फौरी तौर पे कर सकते हैं कि ये क्विकली डुएबल है, उसके बाद उसको भी देखेंगे। लेकिन पहले हमारी कोशिश ये है कि 2023 का डेटा, ये सारी डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं, महफूज हैं ये सर्वर पे,
तो इसको हैंडल करना ज़्यादा आसान है। और नहीं, फिर उसके बाद IPUMS हम वालों ने बड़े 17 वाले अच्छे को भी तरीकेकार करेंगे इंशाल्लाह। जी सर, IPUMS वालों ने बड़ा अच्छा तरीकेकार से सारे वेरिएबल वहाँ पे मौजूद है। जाहिर है कि वो जो वेरिएबल आपका वेरिएबल ऑफ इंटेलिजेंस पे आप काम करना चाह रहे हैं वहां से आप वेरिएबल सेलेक्ट करें, तो ये 3 सेंसेस का हमारा डाटा वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। हाँ, सही कह रहे हैं आप। तो उसी बिल्कुल, ये पैटर्न से बिल्कुल अगर ये करना है, आप ये सही कह रहे हैं, ये हमें करना है। अदरवाइज भी अपने लोगों Great, के लिए thank you करना है कि very आपके much पास सेंसस का डेटा होना for चाहिए this उसमें। wonderful answer that this data will be available hopefully in this coming month or two. We also have question Sumit Ashok. Sumit, please go ahead. Okay. Thank you, sir. It is always a pleasure to listen to Naeem Zafar Saab. Sir, my question is there any module of under unemployment in the data? Because when I was reading the report, I saw that in 6 years, the water bills or the average, on average, the household pays the water bill in 2018 was 500 rupees. But in 2025, the average has been increased to approximately 2,500. So it's approximately 380 or 400% increase. So this is something the survival inflation. So it's very pertinent that is there any question regarding the under unemployment beside the unemployment? Yes, there are. There are. And then there are some responses you can use to estimate underemployment in at urban, rural and provincial level. उसमें वो घंटों पर डिपेंड करता है कि कितने घंटे आपने रेफरेंस वीक में काम किया है। तो इफ इट That's इज great, sir. बिलो द थ्रेशोल्ड दैट गिव्स यू आइडिया अबाउट अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये डेटा है, और आप खुद भी एस्टिमेट भी कर सकते हैं ग्रैनुलर लेवल पे। But sir, report में इसका कहीं जिक्र नहीं था under हाँ, unemployment. बट यू विल बी एबल टू डू इट, माइक्रो डेटा से आप कर पाएंगे। Okay, thank you. Thank you, that's great. Thank you, sir. Thank you. We have Mohammad Kamran Saab. Please go ahead. सर अस्सलाम सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। सर, ये मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से, और मैन्युफैक्चरिंग एसएमई के ऊपर मेरी रिसर्च है पिछले 3-4 साल से। इसमें सर बड़ा अच्छा है कि आप लोगों का सेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हर 5 साल बाद होती है। लास्ट 2005 में हुई, फिर 10 इयर्स का गैप आया, फिर 2015 में स्टार्ट हुई, और 21 में आप लोगों ने उसको वेबसाइट पे भी दिया। फिर क्वेश्चन ये है कि सर वो जो आपने लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल और हाउस होल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 12 लाख का आपने डाटा दिया है, उसमें ये नहीं पता चलता कि वो कौन सी हाउस होल्ड्स हैं, जो कि ऑलमोस्ट 7 लाख हाउस होल्ड्स हैं। 4 लाख मेरा ख्याल है स्मॉल मीडियम स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग है, और 30,000 की लार्ज मैन्युफैक्चरिंग आप लोगों ने उसमें लिखी है। एटलीस्ट उसमें कुछ तो हमें लिस्ट देना कि ये कौन सी कंपनीज हैं, कहाँ पे हैं, इनका एड्रेस क्या है, सो दैट इफ वी वांट टू गेट some data more than what you have provided us, जो कि जनरलाइज किस्म का है, तो वी कैन हैव एक्सेस टू दैट टू डू आवर ओन रिसर्च। वो मैंने जो था रजिस्टर आप लोगों ने बनाया हुआ इंडस्ट्री का, जिसको आप कह रहे हैं वेरी सून इट इज गोइंग टू कम अप, आई डोंट नो व्हेन इट विल कम अप, उसमें क्या होगा, एटलीस्ट ये लिस्ट तो हमें प्रोवाइड करें। आई अटेंडेड वन ऑफ योर डाटा फेस्ट इन लास्ट ईयर। इस साल मैं अटेंड नहीं कर सका, बट इट इज अ गुड स्टेप यू हैव टेकन अप टू इंक्लूड द स्टूडेंट्स एंड एकेडमिया इन योर एफर्ट्स टू गेन नॉलेज, ताकि हम भी माइक्रो डाटा को यूज करें। तो इसमें काइंडली थोड़ा सा इनकरेजिंग हो, स्टूडेंट्स को अपने साथ मिलाएं, so that we can help you and utilizing this data. Thank you very much. जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। Geez. Naeem Saab, you want to say something or should I go ahead? हाँ, नहीं, आप कर सकते हैं। बस उसमें ये कि डेटा आपको हर मुमकिन देने की कोशिश कर रहे हैं और भी करेंगे, लेकिन इंडिविजुअल आइडेंटिटी हम शेयर नहीं कर सकते। वो ऐसी चीज है कि वो It's डिस्क्लोज नहीं कर basically, सकते, फर्द की और इदारे की आइडेंटिटी। तो आप yes. ये मुमकिन है कि बहुत ही स्मॉल लेवल पे आपको डेटा दे दें, तो उससे आपको आपकी रिसर्च या स्टडी मजीद बेहतर हो जाए। Okay, so we have Dr. Hina Ambar with us from EDB. Dr. Hina, please go ahead. Assalamu alaikum, sir. Can you hear me? Yes, please go ahead. Sir, actually my question is, okay, do you think that there is a downward bias in female labor force participation statistics in labor force surveys?
and what are the reasons for that? And secondly, how do you train enumerators to reduce this downward bias if there is a downward bias in female labor force participation statistics? ये तो आपका जो दूसरा जो है ना कि हाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू मिटिगेट द डाउनवर्ड बायस, हो तो उस पर होगा कि द प्रीमाइस इज एस्टैब्लिश दैट देयर इज डाउनवर्ड बायस। तो अभी आप लोग बताएं, मैं चेक करके साइंटिफिकली किसी और Enumerators रिसर्च को से आप किस पेपर तरह से train आप कंपेयर करके बताएं तो फिर उस पर क्योंकि कोई I don't know, there's साइंटिफिक a study डिस्कोर्स in करें। India, maybe there's a study in India, उन्होंने बेसिकली सवाल किए थे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को लेके, मेल हेड ऑफ द हिना हाउस आवाज होल्ड से ब्रेक हो रही और है फीमेल। आपकी। कैन यू हेयर मी नाउ? जी जी, प्लीज गो अहेड। सर, there's a study in India जिसमें उन्होंने सवाल किया था फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के स्टेटिस्टिक्स का, मेल हेड ऑफ द हाउस होल्ड से और फीमेल जो थी आप कह लें वाइफ ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड। So when you ask questions from the females, the labor force participation statistics were better or improved, I would say. So labor force surveys में, I mean, enumerators जो हैं वो सवाल क्या मेल हेड ऑफ द हाउस होल्ड से करते हैं फीमेल्स की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के, या फिर फीमेल्स से? और अगर मे बी कंजर्वेटिव सोसाइटीज हैं तो वहां पे इस चीज को किस तरह से डील किया जाता है? हिना, योर वॉइस वाज वी वर अनेबल टू हियर यू। सर, आपको अगर आवाज आई है तो प्लीज गो हाँ नहीं, अहेड। मुझे सुनाई दिया है। ठीक है, प्लीज गो अहेड। हिना ये पूछ रही है कि बिकॉज ऑफ नॉर्म्स और कंजर्वेटिव नेचर ऑफ द सोसाइटी, फीमेल हाउस होल्ड मेंबर्स ऑल्दो दे मे बी एम्प्लॉयड बट दे मे स्टिल नॉट बी रिस्पॉन्डिंग, और वो डाउनवर्ड बायस आ जाएगी। उसको रूल आउट नहीं कर सकते, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल है कि ऐसे थोड़े से रीजन्स हैं, सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स होंगी जहां आपकी नॉर्म्स इतनी रिस्ट्रिक्टिव हैं। अदरवाइज उन मखसूस इलाकों को छोड़ के बाय एंड लार्ज मुख्तलिफ इकोनॉमिक सेक्टर्स में औरतें जो काम कर रही हैं, चाहे वो फॉर्मल सेक्टर में हो, आउटसाइड हाउस होल्ड हो, जो लेबर मार्केट में हो, या वो घरों से काम कर रही हैं, वो अनपेड है या वो पेड वर्क है और वो किसी गिग के जरिए अपनी लेबर सप्लाई कर रही हैं, तो वो बाय एंड लार्ज तो कैप्चर हुआ है। और ये अगर आप लेबर फोर्स के नंबर देखें, फीमेल लेबर फोर्स एम्प्लॉयमेंट, ऑल्दो नॉट कंपेयर टू द रीजनल लेवल, बट स्टिल जो पिछला वाला हमारा लेबर फोर्स सर्वे था उसके मुकाबले में सिग्निफिकेंटली इंक्रीज भी है। इसी तरह उनकी जो और ये चीज़ हमें उसमें भी नज़र आ रही है, आई मीन ये corroborate करती है उस चीज़ से, जो मैनेजमेंट में सीनियर लेवल पे औरतों की पार्टिसिपेशन वो लेबर फोर्स सर्वे में ज़्यादा नज़र आ रही है। और इससे बड़ी वो तकवीत मिलती है कि आप जो रिटेंशन देखते हैं मुख्तलिफ एजुकेशन लेवल्स पे और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में लड़कियों के इनरोलमेंट देखते हैं, तो वो मेरा ख्याल है कुछ ही डिसिप्लिन होंगे जिसमें वो बराबर नहीं है। अक्सर डिसिप्लिन में उनकी पार्टिसिपेशन मर्दों से ज़्यादा है। तो ठीक है, उनकी वो जो हमारा टिपिकल सेटअप है उसमें शादी के बाद बहुत सारी लड़कियां लेबर मार्केट में नहीं आती होंगी, लेकिन जो ज़्यादा पढ़ रही हैं उनकी रिटेंशन, जेंडर पैरिटी इंप्रूव हो रही है एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में ज़्यादा आ रही हैं, और देयरफॉर इट इज़ लाइकली कि दे विल कंटिन्यू इन द रिस्पेक्टिव प्रोफेशंस। तो वो चीज़ लेबर फोर्स में भी किसी हद तक नज़र आ रही है। बाकी बाइस को ज़ाहिर है कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन नंबर्स मेरा ख्याल ये बता रहे हैं कि ये कुछ जगहों पे तो शायद ये हो, बाय एंड लार्ज हमारी सोसाइटी इतनी रिस्ट्रिक्टिव नहीं है कि अगर कोई लेबर सप्लाई कर रही है औरत तो उसकी रूरल और अर्बन दोनों सेटिंग्स में वो हमें जवाब मिल जाता है। Great, thank you. And we have maybe one or two second last or last question. So we give it to Infinix 60 Pro. Please go ahead and please tell your name also. Infinix 60, Infinite Hot 60 Pro. अगर आपको आवाज आ रही है तो I'm here, Dr. Faisal Saab. Dr. Sofia Anwar, Professor of Economics from GC University, Faisalabad. जी प्लीज Am गो I अहेड। audible to you? जी प्लीज। आपकी जी। आवाज आ रही है। जी बिल्कुल। नाइम साहब, wonderful for your all efforts throughout the 1, 2, 3 previous years. मेरे पास एक नहीं, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है, तो आई विल जस्ट गो ब्रीफ। पहला मुझे ये पूछना था कि क्या हमने सैंपल साइज में कोई चेंज की है और सैंपल साइज को इम्प्रूव किया है प्रोपोर्शनेटली?
सेकंड मेरा जो था, दैट इज अप टू यू कि आप मुझे जिस पे भी आंसर कर सके, कि जो हमारे एनएफसी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत ज्यादा ह्यू एंड क्राई हो रही है, हाउ वी कैन लिंक आवर एनएफसी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन विद द डेटाबेस दैट हैज बीन डेवलप्ड बाय द पीबीएस। हमारी पॉवर्टी का डाटा हो सकता है, क्लाइमेट का। एंड थर्ड, द मेन कंसर्न कि रिसेंटली आई वाज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू द माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी से रिलेटेड उनकी एजुकेशन, उनके माइग्रेशन, उनकी लेबर, इसको हम अब कैसे इसमें से कर सकते हैं? क्या हमारे इस डाटा में ऑप्शन है कि हम इसको चेक कर सके? सो इट विल बी वेरी नाइस फॉर यू कि अगर आप मुझे इनके ऊपर कुछ गाइड तो कर आपने तीन चीजें पूछी हैं। पहले तो आपने सैंपल साइज का पूछा है, फिर जी आपने सर। एनएफसी पे बात की और फिर आपने माइनॉरिटी पे बात की है। एम आई राइट? यस सर। जी बिल्कुल। अच्छा, अब जो पहली बात की ना सैंपल साइज, ये अब हम जो भी डेटा कलेक्शन कर रहे हैं 2023 के सेंसस में जितने भी घराने थे वो जियो टैग हो गए। तो हमारे पास 4 करोड़ जियो टैग्स हैं। तो उसमें 3 करोड़ 83 लाख रेजिडेंशियल हैं और बाकी या तो एक्सक्लूसिवली कमर्शियल इकोनॉमिक हैं या उनकी मिक्स नेचर है। तो ये आपका फ्रेम अपडेट हो गया। तो अब हमने उसके बाद लेबर फोर्स सर्वे किया, लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर, फिर हाइस किया। इन सब में हमने 2023 का फ्रेम यूज किया। तो वो अपडेटेड है और ज़ाहिर है वो प्रोपोर्शनली है। इसमें हम 2 स्टेज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग करते हैं हाइस और लेबर फोर्स के सर्वे के लिए। तो वो करस्पॉन्ड कर रहा है, उसको प्रोपोर्शनल है वो। दूसरी बात की आपने एनएफसी की। अब एनएफसी देखिए, जो हम सेंसस करते हैं ना, एनएफसी पे थोड़ी सी बाद में बात कर लें, या चलें यहीं से शुरू कर देते हैं। एनएफसी में आपके पाकिस्तान में 82% जो आपकी रिसोर्सेज हैं वो पॉपुलेशन पे जा रही हैं, 10% आपकी पावर्टी पे जा रही हैं, तो 92 हो गई। तो आपकी फिर 8% रिसोर्सेज हो गई, कोई ग्रीन कवर आ जाएगा, कोई फिजिकल एफर्ट आ जाएगी, कोई सूबे की पिक्यूलियर जोग्राफिकल नेचर आ जाएगी, बलूचिस्तान वगैरह वगैरह। अब इसमें 92% आपका जो पैसा जा रहा है सूबों के पास, बड़ी आसान बात है कि वो परवर्स है। इसका मतलब है कि आप इंसेंटिव दे रहे हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करो और उनको ज्यादा गरीब रखो। अब ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि उसकी कंपोजिशन है एनएफसी की, कि पॉजिटिव एफर्ट्स पे चीजों पे पैसा जाएगा या परवर्स चीजों पे जाएगा। ये एक पॉलिटिकल चीज है, ये हमारे पॉलिटिशियन डिसाइड करें, उसमें पीबीएस का कोई दखल नहीं है। बाकी ये कि जिन मुल्कों ने ये फैसला जितना जल्दी किया कि उनको राइट इंसेंटिव्स देने चाहिए अपने रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म में, परवर्स नहीं देने चाहिए, वो जल्दी उससे निकली। अब हम भी ये करेंगे तो फिर आप उम्मीद करेंगे जब इसको आप डिसइंसेंटिवाइज करेंगे, या आप ये करें कम से कम कि ठीक है जनाब, आपको जना 10 रुपए मिलने थे तो 5 मिलेंगे, कि अभी आपके पास कितने लोग हैं, और 5 इस पे मिलेंगे कि आपने मरहलावार उन पे पॉपुलेशन मैनेजमेंट का कौन सा प्रोग्राम किया है और आप हर साल उसके कोई नताइज दिखाएं। तो कि आधा आपका स्टैटिक कंपोनेंट हो और आधा आपका डायनेमिक कंपोनेंट, और डायनेमिक कंपोनेंट आपका परवर्स ना हो, प्रोग्रेसिव हो, और फिर आप उसको रिपोर्ट करें तो फिर आपको पैसे मिले। तो वो चीज़ तो वो एक पॉलिटिकल हो गई एक्सरसाइज, उसमें तो पीबीएस का कोई लेना देना नहीं है। हम ये बात कर सकते हैं और जो ट्रेंड्स हैं वो दिखा सकते हैं। और तीसरी बात की थी आपने फाइनली माइनॉरिटी की। तो इसमें देखें जो माइनॉरिटीज़ का डेटा, इसमें क्रिश्चियंस का, हिंदू, सिख, ये सब डेटा आए हैं और वो अवेलेबल भी हैं डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और कोई भी अगर यूज़ करना चाहे कि उनको जो भी इसका अपना काम करना चाहे पॉलिसी रिसर्च का, तो we share with them. It's available on the website. Thank you so थैंक much, यू। sir. Thank you so much, sir. And very, very grateful. Wonderful, wonderful session. We really enjoyed. And we are very hopeful that the coming week, that is starting tomorrow, we'll get the latest PSLM data, micro level, available at the PBS website. And also, many questions that we have in our mind will be answered by the micro data. And we will also try to find some solutions to the problems that people at PBS are facing, or people at Planning Commission or other ministries are facing, inshallah, through our academic and policy making research. And that's a wonderful that you give time to us on very busy New Year Eve weekend. That's so kind of you. Before I hand over to Irfan, I'll ask Ali Bhai if he is hearing us. Can you please go ahead, Ali Bhai, Ali Kamal?
अली भाई आवाज आ रही है? नहीं आप वो शायद अनम्यूट करें प्लीज अपने आप को एंड देन गो अहेड। जी जी बिल्कुल आ रही है। मैं वो बेसमेंट में था तो आवाज खत्म हो गई। नहीं जी 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 वेरी प्लीज। मैंने बस यही कहना था। मैंने कहा इससे पहले कि इरफान कुछ के और वो जो उसका लिखा लिखाया होता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया बिकॉज आई वांटेड टू टेल एवरीवन कि मैंने रात को सर को फोन किया है और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है एंड ही इज बहुत बिजी होते हैं और फिर भी उन्होंने रिक्वेस्ट हमारी जो है वो जिसको कहते हैं हिंदी में स्वीकार की है, एक्सेप्ट की है। एंड टुडे ही डिलीवर्ड अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन और तकरीबन हर सवाल के तकरीबन ठीक तरीके से जवाब उन्होंने दे के सबको सेटिस्फाई किया। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपके आने का, आपको हमें टाइम देने का, और दूसरा शुक्रिया फैसल का। उसने अपने भाई के घर जाना था और मैंने उसे कहा तो आपने मॉडरेट करना है, ही इज मॉडरेटिंग इट। सो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, मॉडरेटर का भी और नईम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे मेंटोर हैं जी नईम साहब, और जब भी मैं बात करता हूँ तो वो इस तरह जब मान लेते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है। तो फैसल से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि इरफान को माइक देने से पहले जरा 2 मिनट मुझे दे दे। तो बाकी आई होप एवरीवन एंजॉयज दैट प्रेजेंटेशन एंड क्वेश्चन आंसरिंग सेशन। और बहुत सारे लोगों के सवालात होते हैं, बड़े कभी कभी ऐसे होते हैं जिसमें हम जो डेटा को अच्छा जानते हैं थोड़ा सा उनके लिए बड़े वो होते हैं कि जी अच्छा ये कौन सा सवाल पूछ लिया। बट क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन एंड आई होप एवरीवन हैज अ गुड क्लैरिटी अबाउट LFS, HIS and what PBS is doing as far as data collection is concerned। और इस किस्म के हम मेरे ख्याल सेशन आगे दोबारा भी करेंगे जैसे जैसे अगर आपकी कोई डिमांड होगी किसी भी डेटा के ऊपर, तो वी हैव दिस इकोनॉमिक फ्रंटियर, पाकिस्तान इकोनॉमिक फ्रंटियर, जिसके ऊपर हम दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। सर अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया अली आपका, फैसल, इरफान के और सारी जो एकेडमिक कम्युनिटी है। मैं तो अभी तक अपने आप को एकेडमिशियन ही समझता हूँ। लर्निंग एंड शेयरिंग उससे अच्छी क्या चीज़ हो सकती है। तो बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ओवर टू यू इरफान। थैंक यू डॉक्टर नईम साहब, आपने इतना टाइम दिया। डॉक्टर फैसल साहब और अली कमाल और तमाम आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इस पे सेशन करना, ताकि जो एक कॉन्सेप्ट्स हैं और जो एक वैल्यूबल थॉट्स डॉक्टर नईम साहब की तरफ से आए। तो मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अगेन तमाम मेंबर्स का और डॉक्टर फैसल और डॉक्टर नईम साहब आपका शुक्रिया इतना सेशन अच्छा करने पे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया everyone for being here with us for almost more than an hour. Thank you very much Dr. Naeem Zafar Saab for your presence, and we definitely learn a lot in terms of the data, the way it is gathered, the way it is utilized and will be utilized. And we are hopeful that we will keep hearing your intelligence and intellect over the period of time, not only in this month but in this year and years ahead inshallah. Thank you sir, बहुत बहुत शुक्रिया and Allah Hafiz. Thank you.